So, very good morning, all of you. Good morning, sir. Okay, so in the today's session, we're going to start with the classification of discrete time signals. And anyways, we have completed with the operations, that is modifications of DT signals. So this is the last part that is remaining as far as 1.1 is pending. Then we'll be starting with 1.2, linear convolution, circular convolution, and so on. That also comes under the ambit of operations of discrete time signals. So for today, we're going to start with the classification of discrete time signals. There is a proof expected in case of sampling theorem. So I'll be providing you the notes of the proof. Anyways, we have seen what do you mean by sampling theorem. Sampling theorem is like where you take the sampling frequency more than the double the frequency of message signal. So obviously there is a proof for the same. So I'll send you the proof like how it is to be done. So this will complete the sampling theorem part, and that will ultimately complete your 1.1. Because today we will be completing classification of DT signals, and from Monday onwards, 3 to 4, we'll be starting with the linear convolution, circular convolution part. Syllabus is little bit vast, so we need to rush through the syllabus, or else second option is we need to go with the extra lectures wherever if required. But I generally want to avoid it because I don't want to burden my students by the series of extra lectures. That is the reason I'm going a little bit fast. But if you feel like my speed is too fast and it is not that manageable to cope up, you let me know. Then I will reduce my speed. And obviously, then there is only one option left, that you need to go with extra lectures if required. So it is like you decide amongst yourself. Fine. Let's start with the syllabus, sir. We can't wait more. The students will join. It is 98. The strength is around 125 plus. They will join as soon as they get free with the previous lecture. We can't wait more. Okay. So let's start with the classifications of signals. Anyways, I have provided you with the notes yesterday at around midnight. You can check it out if it is available or not. And secondly, I expect everyone to open this thing on your terminal as well, so that it becomes easy for you for the handy purpose. If anything, if you miss in between, you can directly refer to the notes. Okay, fine. So let's start with the session, sir. So we are talking about the classification of discrete time signals as mentioned in your syllabus 1.1. So this is the notes available. It is 16 pages notes are there. So I hope you all got 16 pages of PDF in your respective folder of your class. Okay, so coming to classification of signals, so we have seen that there are two types of signal, like continuous time, discrete time. Fine. Then you have continuous value, discrete value. So we have seen much more in details. I don't think there is any point in discussion further. Then coming to classification of discrete time signal, that is the main agenda of the today's session. So we are discussing about even and odd signal. We will discuss about period and non-periodic signal. We will discuss about what do you mean by energy and a power signal. And the fourth classification is deterministic and non-deterministic signal. तो सर चार टाइप का डिस्कशन होता है. एक होता है इवन एंड ऑड सिग्नल, periodic, non-periodic signal, energy and power signal, and last but not the least is deterministic and random signal. एक एक को हम लोग देखने वाले कैसे होने वाला है. यहाँ पे इवन ऑड सिग्नल इजी है, पीरियड नॉन पीरियोडिक थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एनर्जी पावर और डिफिकल्ट होने वाला है, deterministic और random is very very easy. Fine. So I want your kind attention towards periodic, non-periodic, and utmost sincere attention, eagle's eye wala attention when I discuss about energy and power signal. Okay, let's talk about the even and odd signal. What is the meaning of even and odd signal? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये बोलता है कि the definition goes like a discrete time signal x of n is said to be even or symmetric. अभी वर्ड even या symmetric कैसे आता है इसका हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग. why it is known as even and symmetric if
x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ माइनस n। इसे क्या समझ में आता है सर, x ऑफ n इक्वल टू x ऑफ माइनस n से, कि x ऑफ n आपको ओरिजिनल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ओरिजिनल जेन्युइन ऑथेंटिक सिग्नल, और x ऑफ माइनस n का मतलब ये है कि टाइम रिवर्सल की बात कर रहे हैं। टाइम रिवर्सल का मतलब ये है कि जो चीज आपको 1 पे मिल रहा था वो -1 पे मिलेगा, जो चीज आपको 2 पे मिल रहा था -2 में। कहने का मतलब ये है कि सिग्नल में जो राइट साइड था वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, और जो लेफ्ट में तो राइट। इट इज लाइक जस्ट सिंपली लाइक इट इज अ फोल्डिंग ऑपरेशन, इट इज लाइक अ फ्लिपिंग ऑपरेशन अलोंग y axis. The right will come towards left, left will come towards right. Like first quadrant will go to second quadrant, second quadrant will come to first quadrant. Fine. Similarly, is the meaning of x of n is equal to x of minus n. अब आपको सब मैंने चीज पूछता है मैथमेटिकल फॉर्मेट के अंदर, तो कैन यू हेल्प मी आउट विथ cos, कैन यू हेल्प मी आउट विथ cos of n? What is the meaning of cos x? Cos x का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको कहता हूँ what is cos x, और ये cos x के इसमें अगर यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ, तो what will be the answer of cos of minus x? What will be the answer of cos of minus cos x? No beta, cos of minus x is same as cos x. Cos of minus x is same as cos x. आप चेक करके देख सकते हो, आपको मैंने पहले ही कहा था कि सर देयर आर टू एप्स अवेलेबल, वन इज ग्राफर, अनदर वन इज डेस्मोस। इस पर चेक करके देखिए सर, cos of minus x is same as cos x. ओके, cos of minus x is same as cos x. तो ऐसे जो वेवफॉर्म जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि cos of minus x या x of minus n will give you x of n, तो we call this as a symmetric or a even. यहाँ पे क्या होने वाला है, cos of x का अगर ग्राफ देखते हो तो cos of x ग्राफ will go like this. The cos of x the graph will like be this. It will be like this form. ये आपको cos x हो गया, cos of minus x भी आपको इसी प्रकार का ग्राफ मिलने वाला है। इसको अगर एक ग्राफ को अगर मैं आगे बढ़ता हूं ना सर, क्या होने वाला है, जस्ट हैव अ लुक एट इट। हियर आई कैन से दैट हियर दिस इज फॉर एग्जांपल माय सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हियर अगर इसको फोल्ड करते हो, like the way you close your book, fine, so what will happen, you see this part will get overlap with this part will get overlap with this part will get overlap with this portion. So what I can say here that there is a symmetry along y axis. That is, there is this kind of signal where I get a symmetry in this fashion. We call this as a even signal. जैसे for example ये मेरे पास में बुक है, ये बुक को अगर मैं क्लोज करता हूँ, ये बुक को अगर मैंने क्लोज कर दिया, तो what will happen, I'll get a symmetry along y axis. That is what is known as a x axis. It is known as a symmetric or a even signal. Okay, I hope the things are clear to you, sir. Okay, proceeding forward. Like for example, I take this like 1 2 3 2 1. फाइन, अभी ये आपके पास में x ऑफ n है। अगर आपको मैं कहता हूँ इसका x ऑफ माइनस n निकालिए, तो x ऑफ माइनस n में कैसे निकालना है इसका मैं आपको शॉर्टकट दिखा देता हूँ। व्हाट हाउ टू फाइंड x ऑफ माइनस n? x ऑफ माइनस n विल बी गिवन एज x ऑफ माइनस n इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट ओपन। क्या करना है सर, यहाँ पे पहले यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बिकॉज 3 इज दैट वैल्यू वेयर द सैंपल इज एट n इक्वल टू 0। अभी क्या करने का, शॉर्टकट दिखा रहे हो, डायरेक्ट शॉर्टकट की बात करने वाले में टाइम रिवर्सल के लिए। तो क्या करने का सर, पहले अंदर का लेने का, बाद में बाहर का लेने का। तो अंदर को क्या दिख रहा है, 2 और 2 दिख रहा है, तो जस्ट यू चेंज 2 and 2, तो क्या हो जाएगा सर, ये 2 और 2 हो जाएगा यहाँ पे। फाइन, बाद में यहाँ पे क्या लिख रहा है 1 and 1, तो जस्ट यू चेंज 1 and 1, तो ये 1 जो था वो वहां चला जाएगा, ये 1 जो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 and 1। तो डोंट यू थिंक सर x ऑफ n इज सेम एज x ऑफ माइनस n? फाइन, तो ऐसा सिग्नल जहां पे x ऑफ n x ऑफ माइनस n आपको सेम वैल्यू मिलता है, ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस सिग्नल वी कॉल इट एज एन इवन सिग्नल। इज इट क्लियर टू यू सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवन सिग्नल? एग्जांपल आपको दिया था मैंने cos का, द एग्जांपल इज cos, तो cos इज एन एग्जांपल ऑफ एन इवन सिग्नल। सर हम लोग आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, मैं क्या कोशिश कर रहा हूं बोलने के लिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज वी कॉल इट एज ऑड सिग्नल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड सिग्नल? ऑड सिग्नल इज आल्सो नोन एज एंटी सिमेट्रिक। तो वो क्या बोलता है कि x ऑफ n is same as x of minus n, but you have to append a minus sign. कहने का मतलब यहाँ पे ये आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज साइन ऑफ n, फाइन, तो आप क्या लिखते हो सर वहां पे, व्हाट इज साइन ऑफ n? यू लाइक दिस वे, लाइक ना, करेक्ट, साइन ओ। So what we are going to write over here is like sine of n can be written as equal to minus of sine of minus n, है ना, ये आपने पढ़ा होगा सर यहाँ पे। Like if I talk about sine of n is same as minus of sine of minus n. Fine, so I'm giving the answer to that girl who answered like cos of n is minus of cos of minus. So cos में it is like cos of minus n, लेकिन sin के टाइम पे minus n बाहर निकालते हो। You can check it out on Grapher or Desmos. You will come to know what I'm talking about. In case of sin, you have like sin n is equal to minus sin of minus n. So what is going to happen, sir? Sin वेव कर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ सर। Let's just try to understand this. What is going to happen in case of sin?
इन केस ऑफ साइन, अगर इस साइन वेव को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास में जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आता है. दिस इज माई सिनोसॉइडल वेव फॉर्म, एंड इफ आई गो इन द लेफ्ट हाफ इट कम्स लाइक दिस. So is there any symmetry? Yes, symmetry is there, sir. But symmetry कैसे? यहाँ पे बुक बंद नहीं करना है आपको, यहाँ पे बुक को बंद नहीं करना है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव पीक जो आपका यहाँ आ रहा था वो अब नीचे आ रहा है, और नेगेटिव पीक जो मैं इसको वाटी बोलता हूँ, वाटी जो आपको जो नीचे मिले, जो वाटी आपको नीचे मिल रहा है वो वाटी आपको यहाँ पे टोपी बन के मिलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टोपी वाटी वाटी टोपी एंड सो ऑन. फाइन. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि इधर आपको टोपी मिलता है तो वाटी नीचे मिलेगा, और वहां अगर आपको टोपी मिलता है तो वाटी आपको नीचे मिलने वाला है. तो हियर यू कैन से देयर इज अ सिमेट्री, बट सिमेट्री अलोंग ओरिजिन, सिमेट्रिक अलोंग ओरिजिन. तो सर सिंपल यहाँ पे याद रखने के लिए अगर आप यहाँ पे से O फॉर ऑड एंड O फॉर सिमेट्री अलोंग ओरिजिन, तो ओरिजिन के अलग सिमेट्री मिलना शुरू हो जाता है. यहाँ पे समझ रहे क्या बोल रहा हूँ. यहाँ पर मैं आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल लाइक आई हैव हियर x of n, I here like x of n equal to 0 1 2 3, और यहाँ पे क्या दिया है -1 -2 -3. इसको अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइक यू हैव हियर 1 बट व्हाट यू हैव हियर इज माइनस ऑफ 1, you have 2, you have minus of 2, you have 3, you have minus of 3. There is a symmetry along origin. तो ऐसा सिग्नल जहां पे सिमेट्री क्रॉस ओरिजिन मिलता है तो O फॉर ओरिजिन, O फॉर ऑड याद रखना इजी हो जाता है. तो ऐसे सिग्नल क्या कहते हैं, दिस इज एन ऑड सिग्नल और आल्सो नोन एज एन एंटी सिमेट्रिक सिग्नल. Is it clear to you, sir, what is I'm talking about? So here do you have here is an even signal. The even signal is x of n equal to x of minus n, also known as symmetric signal, because यहाँ पे symmetry is just like a book, like it is along y-axis. But if I talk about symmetric along origin, तो O for odd and anti-symmetric बोलने का यहाँ पे symmetric यहाँ पे उल्टा हो गया है, anti-symmetric हो गया है, and the expression is given by x of n equal to minus of x of minus n. Is it clear to you, sir? Any question till here? We have started with the classification of DT signals. So we have seen the very first classification, that is even signal and odd signal. Is it clear, sir? क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसा कुछ इस प्रकार का, और आपको कहा जाएगा कि क्लासिफाई whether the given signal x of n 1 2 3 2 1 is an even signal or odd signal with suitable justification. तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा वहां पे कि whether it is even or odd with justification के, like say it is matching with x of n equal to x of minus n, so yes it is an even signal. So this signal is like x of n equal to minus of x of minus n, so yes it is an odd signal. Fine. And then also you can show by means of this graphical representation as well. See, it is following that symmetric across origin. It is following that odd symmetry. Okay. Fine. अभी यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरम आता है, एक अल्गोरिथम जैसा बोला हुआ है. वो क्या बोलता है कि any signal x of n can be expressed as a combination of even and odd. तो even signal को आपने लिखा है x subscript en, like x en, so it is like even signal x e of n, and odd signal is given by x o of n. फिर बोलता है कि wherein x e is equal to 1/2 half of x of n plus x of minus n. मतलब x of n लेने का ओरिजिनल सिग्नल, उसका टाइम रिवर्सल लेने का x of minus n, दोनों को ऐड करने के बाद में सम दैट ऑपरेशन will be multiplied by 1/2, that will give you even part. In case I talk about odd part में वो क्या बोलता है कि आप ओरिजिनल सिग्नल लीजिए x of n, टाइम रिवर्सल वाला वर्जन लेने का x of minus n, and then you subtract them, and after subtracting जो आंसर आएगा डिफरेंस, that you have to multiply by 1/2, that will give you odd part of it. And when you add x e of n and xo of n, that will give you original signal x of n. ऐसा एक प्रूफ दिया है, 5 मार्क के लिए प्रूफ एक्सपेक्टेड है ये. तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे कि x of n is equal to half x of n प्लस हाफ x of n. ऑब्वियसली सर 5 रुपया अगर मैं ऐड कर 10 रुपए मिलने वाला है, 50 प्लस 50 इक्वल टू 100. तो एज सिंपल एज दैट उसमें लिखा है सर वहां पे कि x of n is equal to half 50% x of n plus 50% of x of n will give you 100% x of n. It is very simple to understand sir. Okay. अब यहाँ पे क्या किया उसने, ये प्रूफ को सेटिस्फाई करने के लिए ये हाफ x of n और ये प्लस हाफ x of n एज इट इज ने ब्रैकेट में डाल दिया, एज इट इज इसने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया. देयर इज नथिंग चेंज सर. और फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या करते हैं, यहाँ पे छोटी सी मस्ती करने वाले, मस्ती क्या बोलता है वो, हाफ x of minus n माइनस ऑफ हाफ x of minus n, मतलब 2 minus 2. तो आप बोलोगे सर ये क्या लिखे, मतलब यहाँ पे जाकर आई कैन डायरेक्टली गो ओवर हियर, आई कैन कट इट ऑफ, है ना, ये कट करके अब सेम हो जाएगा, लाइक बिकॉज़ यू कैन कैंसिल बिकॉज़ बोथ आर सेम. हाफ x of minus n माइनस हाफ ऑफ x of minus n. ओके. अब वो क्या बोलता है कि उसको ये फॉर्म में लेकर आना था, ये ऊपर वाला जो फॉर्म हमने जो देखा था ये वाला,
like I have to bring in the form like x of n plus x of minus n, x of n minus of x of minus द हाफ साइन, तब वो क्या करेगा, उसको एडजस्टमेंट कर देगा कि x of minus n यहाँ पर है, इसको यहाँ डाल दिया, फिर ये हाफ x of n को यहाँ रखा और ये माइनस हाफ ऑफ x of minus n को यहाँ ले लिया. Fine. Then I can take half outside, x of n plus x of minus n, x of n minus x of minus n, again half outside, and this what we call it as even part and odd part, and the proof gets completed. Easy, sir. Have you understood the proof? It is very simple. Okay. Now, अब ये प्रूफ को समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल हम ले लेते हैं. भी 5 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है, EQ मतलब एग्जाम क्वेश्चन होता है. यहाँ पे क्या लिखा गया है, फाइंड द इवन एंड ऑड पार्ट्स. मतलब इवन सिग्नल का प्रूफ हम लोगों ने देखा. व्हाट इज द इवन सिग्नल, क्या उसका फॉर्मूला है 1/2 x of n plus x of minus n. एंड व्हाट इज ऑड सिग्नल, 1/2 again x of n minus of x of minus n. Okay, fine. So now you have here what is there is a question over here 42032. ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है. हमको क्या बोलता है कि इसके में ये क्वेश्चन का आप इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल निकालिए. फाइन. So we obtain x of minus n as below. What is x of minus n? क्या करना है आपको, मैंने पहले ही कहा था शॉर्टकट याद रखिए सर. अभी पूरा काम हमारा शॉर्टकट पे होने वाला है. Now I won't be following Mumbai University method as a something as a concrete method over there. तो सर क्या करना है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर मैंने x of n, अगर मुझे कोई पूछता है x of minus n निकालने के, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करने वाला. शॉर्टकट मुझे क्या बोलता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे 0 है तो यू राइट देयर 0. फाइन. फिर अंदर का लेने का, अंदर क्या है, अंदर है आपका 2 and 3, तो 3 को यहां लिखा, 2 को यहां लिखा. जस्ट यू हैव टू स्वैप. फाइन. अभी बाहर का लेने का, बाहर क्या लिखा है सर 4 and 2, तो 2 को यहां लिखा और 4 को यहां लिखा, खत्म. शॉर्टकट इज कंप्लीट. फाइन. तो व्हाट आई गेट हियर 2, 3, 0, 2, 4. आई होप शॉर्टकट इज इजी फॉर यू. फाइन. हाउ टू गेट द टाइम रिवर्सल विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. आपको पहले ही मैंने कहा था सर, आपको गेट के शॉर्टकट्स दिखाने वाला हूं जिससे आपका लाइफ इजी हो जाएगा. लाइक रादर देन गोइंग लाइक, ठीक है, अगर मुंबई यूनिवर्सिटी मेथड फॉलो करते हो तो यहाँ पे व्हाट यू विल राइट, यू लाइक y of n is equal to x of minus n, फिर y of 0 equal to x of 0, y of 1 equal to x of minus 1. अरे जिंदगी बर्बाद हो जाएगा आपका. बेटर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू फॉलो डायरेक्टली शॉर्टकट. आपको पहले मैंने शॉर्टकट बताया कि शॉर्टकट क्या बोलता है. अगर शॉर्टकट मेथड अगर मैं फॉलो करता हूं तो यहाँ पे माइनस लिखा है, तब क्या लिखोगे, लाइक -1 -1 -1 -1, फिर 1 upon -1, then 2 upon -1. Again, this is like a very easy, super duper shortcut. फाइन. जैसे वो बादशाह का एक सॉन्ग है टॉप टकर, इट लाइक टॉप टकर वाला शॉर्टकट है ये. यहाँ पे क्या करना है कि सिर्फ आपको इंटीरियर है उसको स्वैप कर दिया. फाइन. जो बाहर का उसको स्वैप कर दिया, खत्म, इट इज डन. इसको मैं कहता हूँ टॉप टकर वाला शॉर्टकट है ये. आपको मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी मेथड बताया, ग्राफिकल मेथड बताया, शॉर्टकट मेथड बताया, सुपर शॉर्टकट मेथड बताया. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप टकर वाला शॉर्टकट. लाइक डायरेक्टली यू हैव टू स्वैप इंटरनल, यू हैव टू स्वैप एक्सटर्नल, खत्म, टाइम रिवर्सल इज डन फास्ट. ओके. नाउ इसके बाद में अभी क्या करने वाले हम लोग यहाँ पर, नाउ यू हैव हियर x of n, x of minus n, तो एक ब्रैकेट में ऐड किया है, दूसरे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट किया है, बाद में हाफ हाफ से मल्टीप्लाई किया है. तो अभी ऐड कैसे करना है वो देखिए आप. यहाँ पे ऐड करने का तरीका होता है. तरीका क्या बोलता है कि फर्स्ट यू हैव टू check with the arrows, क्योंकि arrow indicates the signal at n equal to 0. तो यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है, तो 0 plus 0 is 0, खत्म. फिर बाद में क्या करने का, एक बार arrow मैच हो गया, फिर 2 plus 3 is 5, 4 plus 2 is 6, 3 plus 2 is 5, 2 plus 4 is 6. Done. Subtraction similar way sir. पहले 0 minus 0 is 0, then 2 minus 3 is -1, 4 minus 2 is 2, 3 minus 2 is 1, 2 minus 4 is -2. अभी इसको आप हाफ से यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे आप हाफ डाल दीजिए, इट विल गिव यू इवन एंड ऑड पार्ट. इज इट क्लियर टू यू सर? देखिए यहाँ पे सेम चीज करने वाला है. पूरा नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, दिक्कत लेने की, टेंशन लेने का बात नहीं है. एक्स ऑफ ऑड यहाँ पे दिख गया है, हाफ कर दिया यहाँ पे भी इसने हाफ कर दिया है, तो ये इसको इवन पार्ट आ गया. 3 2.50 2.53, ऑड यहाँ पे आ गया -1 0.5. एंड देन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट प्रूफ क्या बोलता है, वो थ्योरम क्या बोल रहा था कि कोई भी सिग्नल होने दो दैट कैन बी शोन बाय इवन पार्ट प्लस द ऑड पार्ट. इवन पार्ट प्लस दी ऑड पार्ट. अभी आपको इवन पार्ट भी मिल गया है, ऑड पार्ट भी मिल गया है. अभी दोनों को आप ऐड करके देखिए कि वेदर दैट इट इज मैचिंग और नॉट. यहाँ पे उसने क्या किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि इवन पार्ट को उसने यहाँ पे रखा, ऑड पार्ट को यहाँ पे रखा, एरोस को मैच करना है. एरोस को मैच करने के बाद वो एरो को ऐड करना है मुझे, एंड देन द रिमेनिंग एलिमेंट्स आई हैव टू ऐड. सो व्हाट डू आई गेट, 4203 विच मैचेस विद योर ओरिजिनल क्वेश्चन 4203. तो मतलब आपका प्रूफ वेरीफाई हो गया. इज इट क्लियर टू यू सर क्या चल रहा है? Any question, any doubt, you can stop me. If any problem, you can let me know. Everything is there in the notes, no worries. Notes are completely purely handwritten.
इससे और इजी हो जाता है समझने के लिए, बिकॉज नोट्स को लिखा भी इस तरीके से गया है कि इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एंड आई हैव मेक श्योर कि द नोट्स आर कलर कोडेड, लाइक देयर इज अ ब्लैक कलर, देयर इज अ रेड कलर, तो थोड़ा सी समझ में अच्छे से आता है कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, rather than using a standard printed black and white notes that gives you more clarity, because color coding से थोड़ा और इजी समझ में आता है क्या हो रहा है वहां पे. Fine, okay. So this completes in the first classification, that is even signal and odd signal. Moving towards second classification, that is periodic, non-periodic. तो अभी आपका अटेंशन लेवल थोड़ा और इंक्रीज करते जाना है. मैंने पहले ही कहा था कि सर मेरे पास में 4 क्लासिफिकेशन है. एक है इवन सिग्नल, ऑड सिग्नल, another you have is periodic, non-periodic, third one what you have is थर्ड वाला कौन सा था हमारा, एनर्जी पावर था, एंड लास्ट वाला इज डिटरमिनिस्टिक एंड रैंडम. यहाँ पे आपने अटेंशन थोड़ा दिया, यहाँ पे अटेंशन थोड़ा आपको और ज्यादा देना है, यहाँ पे और ज्यादा देना है, और यहाँ पे इट इज वेरी सिंपल, ये हार्डली आपको विद इन 5 to 10 सेकंड्स आई बी कंप्लीटिंग दिस पोर्शन. अब ये पार्ट पे हम लोग आने वाले, ये पार्ट पे थोड़ा अटेंशन लेवल आपको जरा बढ़ाना है, बिकॉज अभी चीजें थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पीरियोडिक. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? नाम में पता चलता है पीरियड, पीरियड की बात करता है यहाँ पे. पीरियड मतलब क्या कि जो चीज रिपीट होने वाली है. एग्जांपल आपको दिखाता हूँ सर, यहाँ पे आप ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या आप देखने को क्या मिलता है यहाँ पे हम लोगों को. व्हाट आई एम एबल टू सी हियर, कि हियर व्हाट आई एम सीइंग, कि लाइक हियर यू हैव द फर्स्ट इज व्हाट you have here is like you have your 1, fine, like you have your 1, fine, then you have your 2, then you have 3, and then it again repeats 1 2 3 1 2 3 1, बार बार चीजें रिपीट होना शुरू हो रही है. तो ऐसा सिग्नल जब पे रिपीटेशंस मिलता है, लाइक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. अगर मैं साइन वेव की बात करूं, साइन वेव में क्या मिलता है आपको, इज साइन वेव is your sine wave a periodic signal? Yes. Why? Because टोपी मिला, वाटी मिला, टोपी मिला, वाटी मिला, टोपी मिला, वाटी मिला, टोपी मिला, वाटी, इट गोज ऑन लाइक टोपी वाटी टोपी वाटी टोपी वाटी, एक चीज बार बार रिपीट हो रहा है. फाइन, दैट इज अ पीरियोडिक सिग्नल. संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे, खत्म. अगेन संडे मंडे, इट रिपीट्स. तो जो चीज बार बार रिपीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक सिग्नल. फाइन. अगर कोई चीज है जो रिपीट नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मेरा ऑडियो सिग्नल की बात करूं, वे आई एम टॉकिंग टू यू, इज इट रिपीटिंग? नो, बिकॉज एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम आई एम मेकिंग अ न्यू वर्ड, at every moment of time I'm making a new sound. तो मेरा साउंड जो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी इधर कभी इधर कभी ऐसे कभी ऐसे कभी, there is no repetition. आप ये नहीं बोल सकते देखो सर यहाँ पे टोपी मिला, यहाँ पे टोपी मिला. यस, टोपी मिल रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड देखिए, अब इसका एम्पलीट्यूड देखिए, अब इसका एम्पलीट्यूड देखिए, अब इसका एम्पलीट्यूड चेंज होते जा रहा है. नो डाउट दैट ऑडियो सिग्नल गिव्स यू लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, बिकॉज एनी सिग्नल कैन बी शोन in terms of sin and cos and DC as told by Fourier. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड बार बार अलग अलग चेंज होते जा रहा है. लेकिन अगर मैं ये साइन वेव की बात करूं, इट इज सेम. हर जगह पे टोपी का विड्थ, टोपी का हाइट सेम है. हर जगह पे वाटी का डेप्थ, वाटी का जो विड्थ है वो चेंज है, सेम. तो कहने का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि दिस इज अ कंप्लीटली पीरियोडिक सिग्नल, एंड द सिग्नल वेयर देयर इज नो रिपीटेशन वी कॉल दिस एज अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल. तो जस्ट आपको मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n ओवर हियर? तो यहाँ पे क्या बोलता है कि x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस n. प्लस n का मतलब क्या है, n करस्पॉन्ड्स टू पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखते हो कि हर 3 के बाद में रिपीट हो रहा है, लाइक 1 2 3 stop, 1 2 3 stop, 1 2 3 stop. So after every 3 it is repeating. So I can say the periodicity over here is 3 because it is repeating after every 3. अगर आप साइन वेव की बात करते हो तो साइन वेव कभी रिपीट करता है, आफ्टर एवरी 2 पाई, और यू कैन से आफ्टर एवरी 360 डिग्री it repeats. If I talk about like Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, it repeats after every 7 days. हर 7 दिन के बाद में आपको मंडे आएगा, हर 7 दिन के बाद आपको मंडे आने वाला है. It repeats. What is the periodicity? Periodicity is that time where the thing repeat. That's हम क्या कहते हैं, capital N, periodicity. Is it clear to you what is the meaning of this periodic and non-periodic? Okay. Now how to check whether it is a period or not? यहाँ पे वो क्या बोलता है कि frequency should be rational. अभी rational irrational क्या है उसका छोटा सा मैंने आपको एक मैसेज भेजा था व्हाट्सएप के ऊपर कि रैशनल नंबर क्या बोलता है कि रैशनल नंबर या रैशनल नंबर के अंदर यहाँ पे आप देखते हो, बहुत छोटा सा वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा था जिससे बहुत क्लैरिटी मिल गया मुझे कि रैशनल नंबर इज लाइक रेशो. यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, रेशो. तो रेशो मतलब क्या, यू कैन टेक द रेशो, यू हैव टू टेक व्हाट, यू हैव टू टेक रेशो. फाइन. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो यहाँ पे क्या लिखा हो गया है, इट इज रेशो. तो रेशो ऑफ व्हाट, रेशो ऑफ 2 इंटीजर. जस्ट मेक अ करेक्शन सर इन योर नोट्स, इट इज नॉट इंटीग्रेशन. आप बोलेंगे इंटीग्रेशन कहां से आ गया यहाँ पे, ठीक है. इट इज लाइक इट इज एक्चुअली इंटीजर. इट इज अ रेशियो ऑफ इंटीजर. मतलब क्या है कि आप P अपॉन Q ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, P अपॉन Q.
Fine. This is the meaning of what? This is the meaning of your rational number. Irrational number is a contrary, it is the opposite of rational. तो अगर पाई की बात करते हो तो व्हाट इज बेसिकली पाई, तो पाई के लिए थोड़ा वहां पे मैंने वो लिखा था, आप मैसेज आप चेक कर सकते हो। तो पाई के लिए 22/7 हम जो बोलते हैं, इट इज नॉट पाई बेसिकली। 22/7 इज नॉट द रियल वैल्यू ऑफ पाई, बिकॉज पाई का वैल्यू थोड़ा अलग है, लाइक 3.14159 समथिंग कुछ वैल्यू आता है वहां पे, लाइक 3.14159, and if you talk about 22/7 it is like 3.1428571। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ 22/7 इट गोज ऑन लाइक 1428571, अगेन 1428571, अगेन 1428571। बट ये जो वैल्यू है पाई का 3.14159 का और कुछ अलग वैल्यू आना शुरू होती है, देयर इज नो रिपीटेशन इज हैपनिंग। तो जहां पे रिपीटेशन नहीं होता है तो ऐसे कम को क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज अ इररेशनल नंबर। यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है सर, 1428571, 1428571, 1428571। तो जो नंबर जिसको आप p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हो, या फिर डेसिमल में अगर आपने लिखा तो एक रिपीटेशन को एक ये मिलता है आपको, एक ठीक है रिपीटिंग, तो वी कॉल दिस एज अ रैशनल नंबर। और एक एग्जांपल दिया वहां पे, फॉर एग्जांपल 3.14, तो आप बोलोगे सर ये रिपीटेशन किधर हो रहा है, रिपीटेशन, सो यू कैन पुट zeros over here, fine। does this zero matters over there, is this zero significant? No, ये zero ऐसी टाइम पास में लिखा है यहाँ पे, fine। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ 012 00012, तो दिस जीरो इज इमटेरियल, उसी प्रकार से ये जीरो जो इमटेरियल है, देखो यहाँ पे जीरो रिपीट होना शुरू हो गया। तो यस, दिस इज अ rational number, this is a rational number, this is a rational number, this is a rational number, but this is an irrational number। ये नंबर जो है वो irrational के फॉर्मेट में है, ठीक है। So I hope just I'm giving an example to what is the meaning of rational, irrational। अगर आपको पता है तो well and fine, because it was a mathematical part है, so being a mathematical student, that is the reason I am trying to explain it to you now। अभी वो क्या बोलता है कि एक छोटा सा प्रूफ देके रखा है यहाँ पे, consider x of n is equal to a sin ओमेगा n प्लस 5, है ना सर। ये n कहां से आया, बिकॉज इट इज डिस्क्रीट। अगर ये अपना कंटिन्यूस होता तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ओमेगा टी, है ना। आपने आप तक यही सुना रहेगा, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, फाइन। जनरली आपने ओमेगा टी का अपने टर्म सुना होगा, बट वी यूज हियर ओमेगा n। सो नाउ व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2πf। ये आपको पता होगा ओमेगा का फॉर्मूला 2πf, अगेन 12 स्टैंडर्ड फिजिक्स 1 चैप्टर 1 सर्कुलर मोशन, वहां पे पढ़ा होगा आपने, ओमेगा इज 2πf, f is the frequency and omega is the angular frequency, radian per second। so omega is given by 2πf और ये n will prevail as it is, and then you have plus 5 मतलब phase। okay, now x of n plus n कहां से आया, x of n plus n, ये क्यों लेने वाले हैं, बिकॉज फॉर्मूला में यहाँ पे लिखा था ना x of n is equal to x of n plus n। अभी दोनों को मुझे इक्वेट करना है, बिकॉज इक्वेशन की बात करने वाला है वहां पर वो, ठीक है। तो मैं इसको मैं इक्वेट करूंगा बाद में इसको मैं। तो सुनिए पे क्या बोलता है, व्हाट इज x of n plus n। नाउ आर्गुमेंट n has been changed to n plus capital N। यहाँ पे मैंने n plus capital N कर दिया। अभी इसको मैं एक्सपांड करके आगे काम बाद में हम लोग करेंगे, पहले इसको मैं इक्वेट कर देता हूं। अगर पीरियोडिक अगर है तो इट विल बिकम व्हाट, x of n, मतलब LHS और ये दोनों का LHS सेम होने वाला, मतलब ये x of n एंड दिस x, ये दोनों का LHS में इक्वेट करने वाला। व्हाई, बिकॉज अगर पीरियोडिक अगर है दिस कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड। अगर दोनों का LHS अगर इक्वेट करते हो तो ऑब्वियसली इट इज अ ऑब्लिगेशन ऑन मी दैट आई हैव टू इक्वेट द RHS पार्ट एज वेल, ठीक है। RHS पार्ट को मुझे इक्वेट करना मुझे लाजमी हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसको इक्वेट कर दिया सर। इक्वेट करने पे क्या मिला, a sin 2πfn plus 5, दिस इज द RHS ऑफ फर्स्ट पार्ट, RHS ऑफ सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा। फिर ये n प्लस n को ब्रैकेट ओपन कर दिया तो मुझे मिला 2πfn plus 2πfn plus 5। अब सर सवाल ये उठता है कि अगर दोनों आर्ग्यूमेंट अलग अलग है और दोनों आर्ग्यूमेंट इज द आर्ग्यूमेंट फॉर अ साइन फंक्शन, और ये साइन फंक्शन अगर इक्वेट हो गया तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल होगा जब दोनों का सेम है। तो सेम कब होगा, लाइक साइन 0 इज 0, साइन ऑफ 2π इज 0, साइन ऑफ 4π इज 0, साइन ऑफ 6π इज 0 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई एम जस्ट इग्नोरिंग देन, आई एम जस्ट कैंसलिंग आउट दिस। यहाँ पे मैंने साइन कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे 2πfn plus 5, आई एम जस्ट कैंसलिंग दिस 2πfn plus 5 विद 2πfn plus 5 ओवर हियर, फाइन। तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाता है उसकी वजह से। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ ओनली 2πfn, तो बस ये पार्ट सिर्फ प्रिवेल होगा 2πf कैपिटल n एंड इट विल बी इक्वल टू 0। बट साइन है तो कैसा लिखने का, 2π, व्हाट इज 2π, 360 डिग्री, साइन ऑफ 360 इज अगेन 0 बिकॉज रिपीटेशन स्टार्ट होने वाला है। 4π अगेन रिपीटेशन होगा, 6π 8π एंड सो ऑन।
So now I can say equal to k times of 2 pi, where k is what? 0, 1, 2, 3, 4, and so on. Fine. So now I have here like fn equal to k, because again I can cancel this 2 pi and this 2 pi. This 2 pi, 2 pi, I can cancel it off. Fine. So now what do I am left with? So fn is equal to k. So f can be written as k by n. अभी k by n अगर आप देखते हो तो k by n आपको डायरेक्टली यहां लेके चलता है. इट इज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स. यहाँ पे मैंने कहा था ना, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स. दैट इज द रीजन इट इज नोन एज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर जो कहते हैं उसका वो ये मुझे आभास दिखा रहा है. इट इज गिविंग मी दैट काइंड ऑफ पोर्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ मी. The frequency should be a rational number, and capital N is the fundamental frequency or fundamental period इसको हम कहते हैं, like periodicity. Capital N is a fundamental period. N की बात करने वाला है यहाँ पे. ठीक है. So I hope I proof आपको समझा होगा, like what I'm trying to talk. It is a very easy proof. Very easy है. अगर मैथ्स आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है मैथ्स का, सी आई एम नॉट हियर आस्किंग यू दैट यू शुड नो लीनियर अलजेब्रा, यू शुड नो लाइक सेमेस्टर 2 का मैथ्स जो आपको मेघना मैडम या नीदा मैडम या जिसने भी आपको सिखाया होगा. जस्ट आस्किंग यू टू नो द बेसिक मैथ्स ऑफ योर स्कूल डेज. 7th स्टैंडर्ड मैथ्स, 8th स्टैंडर्ड मैथ्स है सर. इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मुझे यूलर नहीं पता है, मुझे वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, अरे फॉरगेट अबाउट दैट थिंग. Forget about this. I'm not asking all that. It is a very, very easy subject. मैं बहुत बार बोल चुका आपको. Signal and system is a subject where you can score easily 85 above. Take my words. ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बच्चों को 85 अप मिलता है या फिर 40 के नीचे मिलता है. बिकॉज यहाँ पे थ्योरी नहीं है. थ्योरी में कैसा आप थोड़ा कुछ लिखते हो, यू गेट मार्क्स. थोड़ा कुछ लिखा, यू गेट मार्क्स. बट ये ऐसा चीज है कि जहां पे आपने पूरा लिखा, यू गेट फुल मार्क्स, और अगर आपने नहीं लिख पाया, यू गेट 0 मार्क्स. तो यहाँ पे आपको मार्क्स 80 अबव मिलेगा या फिर 40 के नीचे मिलेगा. यू डोंट गेट इन बिटवीन मार्क्स, बिकॉज देयर इज नो चांस लाइक कि ठीक है भाई चल यहाँ पे कुछ इसने लिखा है, थोड़ा थोड़ा मार्क्स दे दे, तो डायग्राम बना चलो इसका 2 मार्क्स दे दिया. बिकॉज इट इज लाइक रन, जैसे क्रिकेट में जैसा रन आप निकालते हो, लाइक 1 एक रन या फिर 0 रन. यू डोंट गेट लाइक विराट कोहली स्कोर्ड 42.5 रन्स. 0.5 कहां से आ गया? देयर इज नो लाइक कंप्लीट बाइनरी नंबर, इधर 1 या इधर 0. इट इज लाइक दैट वे. दैट इज द रीजन. जस्ट हैव अ लुक एट इट. अगर आपको सीजीपीआई को इंप्रूव करना है, if you're interested in that part, so it is a very, very good subject for it. It's like a bonus. A bonus subject आपको दिवाली बोनांजा जैसा आपको दिया गया है सब्जेक्ट ये. ठीक है. Then let's coming to this signal like x of n is equal to 0.5 pi n plus 0.3. मतलब ये ऐसे सिग्नल मेरे पास में दिया हुआ है जो cos है, और cos के अंदर क्या लिखा गया है? 0.5 n plus 0.3. फाइन. अभी इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं? तो यहाँ पे सर क्या लिखा है? cos of 0.5 pi n plus 3. अब ये सिग्नल को, पहला क्वेश्चन है, जरा प्यार से करेंगे हम लोग. तो ये सिग्नल को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो इसके साथ में ओरिजिनल सिग्नल, व्हाट इज ओरिजिनल सिग्नल? a sin, तो अपने यहाँ पे cos है, कोई दिक्कत नहीं, sin and cos is similar to each other. You have omega n plus 5. तो omega here is what is omega? तो omega here is what? 0.5 pi. करेक्ट ना? बिकॉज n इधर भी आया है और n इधर भी आया है. यहाँ पे +5 लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा आपने? +0.3. तो हियर इफ यू ट्राई टू कंपेयर, जस्ट पहला क्वेश्चन इसको बता रहा हूँ सर मैं क्या हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड से हम शॉर्टकट की तरफ मूव करने वाले हैं. तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू शो यू लाइक व्हाट इज हैपनिंग हियर. सो इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू cos ऑफ, यहाँ पे a होता है, जहाँ पे फॉर्चुनेटली हमारे लिए यहाँ पे a 1 दिया है, तो नो नीड टू वरी सर. यहाँ पे a is 1 फॉर अस इन दिस केस. ओमेगा n plus 5 है ना? फाइन. सो यू कैन सी हियर n इज सेम, प्लस इज सेम, 5 is nothing but 0.3. यहाँ पे cos दिया और a value is 1. तो I have to just check with omega. What is omega sir in this case? So you say omega is 0.5 pi. What is omega sir? 0.5 pi. So in this case I have here like omega equal to 0.5 pi. Okay. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सर. अभी इधर आइए. So I can say omega n equal to 0.5 pi n. उसे पूरा लिया है तो n कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली. आई एम लेफ्ट विथ व्हाट? ओमेगा इक्वल टू 0.5 पाई. अब सर मुझे आप एक चीज बताइए, अगर मैं ओमेगा इक्वल टू 0.5 पाई लेता हूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा सर? जस्ट हैव अ लुक एट इट. मैं आपको करके दिखाता हूं यहाँ पे. लाइक ओमेगा इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स पाई. व्हाट इज ओमेगा? सब बोलोगे सर ओमेगा इज 2 पाई f. अगेन 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स 1 चैप्टर 1 सर्कुलर मोशन जो मुझे बताता है वहां पे 0.5 पाई है ना? Fine. Now instead of writing 0.5 pi, why don't I write like this way, like 0.5 pi के जगह पे why don't I write like 1/2 pi है ना? ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 pi. रीजन है सर क्यों ऐसा लिखा है मैंने, I'll showcase it to you. Now I can ignore this pi.
this pi will get cancelled. So now ultimately I'll be having answer equal to f is equal to 1 upon a2 और a2 multiply हो जाएगा, तो I'm left with 1 upon 4. Now you just try to compare this f equal to 1 by 4 with this. Fine. So I can say here k value is 1 and n value is 4. So I can say fundamental period of this signal given in front of me is equal to 4. Is it clear to you, sir? समझा क्या क्या यहाँ पर? अब यहाँ पे एक शॉर्टकट याद रखने का सर, एक शॉर्टकट है. शॉर्टकट ये है कि यहाँ पे अगर आप देखते हो गौर से, ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है? पाई. द मोमेंट यू कम अक्रॉस दिस पाई इन द क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली मतलब पाई कैंसिल होने वाला है. तो पाई अगर कैंसिल हो गया तो मुझे यहाँ पे 1/4 आने वाला है, मतलब 1/k/n के फॉर्मेट में होगा. द मोमेंट यू सी पाई द क्वेश्चन इज पीरियोडिक. द मोमेंट यू सी पाई द क्वेश्चन इज पीरियोडिक. मोमेंट यू डोंट सी पाई इट इज नॉन पीरियोडिक. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे समझने के लिए. आपके लिए शॉर्टकट क्या बताया मैंने? पाई दिखा तो पीरियोडिक बोलने का, वरना नॉन पीरियोडिक बोलने का. आपको एग्जांपल दिखाता हूं सर यहाँ पर. मुझे हैव अ लुक एट इट. फॉर एग्जांपल आई हैव दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी नाउ. अब यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे पाई इज मिसिंग. यहाँ पे पाई इज मिसिंग. यहाँ पे पाई है ही नहीं. यहाँ पे पाई नहीं बनाया हुआ है. तो आप क्या बोलोगे? इट इज नॉन पीरियोडिक. बट डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता. आपको पहले कहा था शॉर्टकट यूज करोगे तो एग्जामिनर को शॉर्टकट समझता नहीं, वो बोलेगा आपने कॉपी किया. तो यू हैव टू शो समथिंग फॉर देम कि भाई देख तेरे लिए स्पेशल. ठीक है. यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ? ओमेगा इज इक्वल टू 0.5n. फाइन. और n तो अपने कैंसिल कर देंगे. ओमेगा तो n इज गॉन. Fine. I don't need to write that n in this case. So n I can ignore this off. Fine. So now what do you have, sir? Next is omega equal to 0.5. So what is omega? बोलेगा sir omega is 2 pi f. Omega is 2 pi f. तो 0.5 यहाँ पे आ जाएगा. तो what is 0.5? What is 0.5? 0.5 can be written as 1/2. So I write here simply as 1/2. So I can now write here f is equal to 1/4 pi. आ गया ये कमीना. ये pi यहाँ पे आ गया. The moment you see pi, what is pi? Pi is what? Irrational. तो 1/4 is rational, but the moment here is an irrational, तो ये पूरे के पूरे को एक साथ लेकर irrational बना देता है. जैसे वो कहावत है ना कि हम तो मरेंगे लेकिन कईयों को साथ लेकर. The moment you see pi, तो ये पूरे के पूरे टर्म को ये irrational बना देता है. और जिस वजह से आपका पूरा frequency is now irrational number. That is the reason you say this is a non-periodic signal. Is it clear to you, sir? तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपको पाई आपको दिखता है पीरियोडिक बोलने का, अगर पाई नहीं दिखता है यहाँ पे क्वेश्चन में तो क्या बोलने का? इट इज नॉन पीरियोडिक. शॉर्टकट दिखा दिया सर आपको मैंने, बहुत इजी शॉर्टकट है समझने के लिए. जस्ट हैव अ लुक एट इट. वर्डिंग्स क्या बोलता है कि सिंस द फ्रीक्वेंसी इज इररेशनल नंबर, सिंस द so therefore the given signal is नॉन पीरियोडिक. अगर नॉन पीरियोडिक है तो सर इसका पीरियोडिसिटी का जिक्र करना है व्यर्थ हो जाता है. वहां पे आई कैन नॉट डिस्कस अबाउट पीरियोडिसिटी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने क्या देखा था फ्रीक्वेंसी वाज अ रैशनल नंबर. दैट इज द रीजन आपने क्या कहा? पीरियड इज 4. But यहाँ पे it is non-periodic. Definitely you are going to say this non-periodic. Yes. Any questions, sir? Okay. Now proceeding forward, sir. Again another question. December 15 का क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 2A में पूछा गया था ये. क्या बोलता है क्वेश्चन कि x of n is equal to cos of 0.3 pi n pi. तो पीरियोडिक देख के पता चल गया अभी. शॉर्टकट, डायरेक्ट शॉर्टकट. 10 sin 0.25 पाई अगेन पीरियड. मतलब ये भी पीरियोडिक हो गया. देख के डायरेक्ट बोला हम लोगों ने. सी ये लेवल है सिखाने का, आपको समझना जरूरी है. टू अप्रिशिएट एक्चुअली दिस इज व्हाट इज अ पीरियोडिक सिग्नल. और ये पीरियड बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप बोल पा रहे हो कि भाई पीरियोडिक है कि नहीं है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. फाइन. तो डायरेक्ट देख के बोल दिया आपने. अब वो बोलता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वेदर द गिवन कॉम्बिनेशन है यहाँ पे इट इज प्लस, वेदर द गिवन कॉम्बिनेशन इज पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक. And if it is periodic, then you tell the periodicity. अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है. एमयू क्वेश्चन है सर, मुंबई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है. दिसंबर 15 में पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर. देखते क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है मुझे एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी मेथड. तो यू हैव हियर फर्स्ट यू हैव टू कंसीडर 0.3 पाई n. सुपरपोजिशन थ्योरम अगर आपने सुना होगा, लाइक सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि आप एक को लो, दूसरे को इग्नोर करो, फिर दूसरे को लो, पहले को इग्नोर करो, और फिर जो रिजल्ट आपको आया वो रिजल्ट को आप ऐड करके आप आंसर बोल दीजिएगा. ठीक है. यहाँ पे मैंने लिखा हियर ओमेगा इन इक्वल टू 0.3 पाई. So if pi will get cancelled and I'm left with answer is equal to 3/20 k/n. So here frequency is a rational number. So we say the given signal is periodic and capital N over here in this case is 20. 20 का याद रखिए because 20 में आगे चल के यूज करने वाला हूँ. Fine. So you can see here the period is 20. N1. What is 1? First signal. Second signal, second chance. 2 pi f equal to 1/4 pi. F is equal to 1/8. Again k/n के फॉर्म में आ गया. तो n is 8 in this case. So here again this is periodic in nature. The period is given by 8.
आपको पहले ही कहा था सर मैंने आपको, अगर आपको शॉर्टकट पता है तो बिना ये सब मचमच किए, बिना से भी टाइम पास नाटक किए, आपने पहले ही बोल दिया ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक कॉम्बिनेशन पीरियोडिक हो गया, तो ऑब्वियसली सिग्नल पीरियोडिक इन नेचर। ये लेवल है सीखने का, ये लेवल है समझने का सर, ठीक है। Okay. Now, since all the signals are individually periodic, overall signal has to be periodic. Now, ये यहाँ ध्यान है सर, LCM निकाला जाता है यहाँ पे least common multiple. 20 and 8, it comes out to be 40. I hope you all are aware of how to find LCM. Third standard maths. करेक्ट ना, तीसरी में सिखाया गया था हम लोगों को LCM कैसे निकाला जाता है। Again, if any of the student don't know how to find LCM, I am there to help you out. Don't worry about it. हाउ टू फाइंड LCM, मराठी में इसको लसावी बोलते हैं, लसावी मासावी LCM GCD, अगर आपको सुना होगा आपने HCF के बारे में। बट हियर आई हैव टू फाइंड LCM, LCM इज गिवन बाय 20,8 इक्वल टू 40। ओके, अनदर क्वेश्चन सर, May 16 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दिया गया 0.25 पाई n प्लस 0.4 वेदर इट इज पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। अब डायरेक्टली बोलोगे, देखिए यहाँ पे पाई है तो पाई मतलब इट इज पीरियोडिक, डायरेक्ट शॉर्टकट प्रूफ हो गया पीरियोडिक इन नेचर। फाइन, इट इज डन। नाउ ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये एक सेकंड थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। e रेज टू j पाई बाई 4n यहाँ पे आता है, ठीक है। तो e रेज टू j पाई बाई 4n, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको मैथ्स का थोड़ा डील दे देता हूँ, आपको पता होगा। अगर इसको यूलर्स रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है कि अगर e रेज टू j थीटा हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब होता है cos थीटा प्लस j sin थीटा, जस्ट यूलर रिप्रेजेंटेशन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया जाता है, अगर आपको याद है तो फाइन, नहीं पता है तो जस्ट माय वे, because I have always have a habit of assuming your knowledge is zero and that is the reason I showcase the things like how it is. Fine. So यहाँ पे आप देखते हो कि थीटा इधर आ गया, ये आ गया, कि थीटा इज बेसिकली व्हाट, दिस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, करेक्ट ना, ओमेगा एन जिसको आप कहते हो, ओमेगा टी है ना, आपने शायद पढ़ा होगा। अगेन सेम चैप्टर 12th फिजिक्स 1 चैप्टर 1 सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा था, वहां पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, बट थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी इज द टाइम। बट यहाँ पे हम लोग टी के जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग एन लेते हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद व्हाट, discrete time signal. So I can say here theta is equal to omega n. Fine. अब मुझे सर बताइए omega n is what? Theta over here. So I can say it is nothing but e raised to j, और एक theta की जगह पे मैं omega n लिख सकता हूँ। That is the reason ये omega n जो यहाँ पर आ गया, omega n. Fine. अब यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे pi दिख रहा है। The moment you see pi, अब क्या बोलोगे? It is periodic in nature. See, अपना omega n is equal to pi by 4n, just n cancel, pi cancel, f is equal to 1 upon 2 into 4 is 2 into 4, 2 4s are 8, k by n, and periodicity is given as 8. N is the periodicity of the signal and the signal is a rational in number. Fine, it is very simple sir, just आपको थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपको दिखा दिया तो चीजें इजी हो जाती है समझने के लिए। Fine. I still remember there is a very good statement made by Dr. D.R. Kalbande, the Dean of Computer Department. बहुत अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि इन इंजीनियरिंग there is no subject without mathematics. Every subject demands maths, directly or indirectly. कुछ सब्जेक्ट में आपको मैथ्स डायरेक्टली मिलेगा, जैसे यहाँ पे मैथ्स आपको डायरेक्टली आपको मिलना शुरू हो रहा है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे मैथ्स इनडायरेक्टली डिमांड करता है, लॉजिकल सब्जेक्ट होगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे अपने गेट पढ़ाई किया था आप लोगों ने, कि ड्रॉन बाय पैरिटी, नॉन पैरिटी, तो वहाँ पे इतना मैथ्स नहीं था, बट इनडायरेक्टली मैथ्स वाज इन्वॉल्व्ड। So every subject of engineering demands mathematics, directly or indirectly. There is no subject in maths which does not have maths. Fine. Please, in this yes statement, you exclude that Constitution of India, सेवा, सत्वा, वो इग्नोर कर सकते हो, बोलेगा अरे उसमें क्या मैथ्स आ गया, ठीक है, फाइन, okay, because those are not engineering subjects. Constitution of India, सेवा, सत्वा, HSS, biology, अब जो पढ़ते हो उसमें मैथ्स नहीं होता है, you can ignore, that is an exception, because that doesn't come under the ambit of my engineering itself. वो इसी आपको बॉटल फिलिंग करके दिया है वहां पे, ठीक है। Now coming to another part, that is energy and power signal. Again very 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 important, because यहाँ पे बहुत आपका टेंशन लगने वाला है, because यहाँ पे कुछ confusion, कुछ problems बच्चों को create होती है, but don't worry, we'll go little bit in a more better way of understanding what is going to happen. Always asked in the exam, compulsory questions 5 marks, exam में हमेशा पूछा जाता है मुंबई यूनिवर्सिटी के, what is the meaning of energy sir? What is the meaning of energy? मैं आपको लेके चलता हूँ again towards 11th physics 1, 11th का physics 1 chapter 4, force. I don't know whether you might have studied it, because you all from 11th and 12th standard. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स डिप्लोमा के भी हो गए, तो they might not be knowing, नहीं पता तो don't worry sir, भाई है आपको सिखाने के लिए, I'll teach it to you, don't worry. तो ये फोर्थ चैप्टर अगर आप पढ़ते हो, या फिर आप पढ़ते हो 11th का फिजिक्स 1 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, तो ये चैप्टर में क्या बोलता है कि वर्क एंड एनर्जी सेम,
work and energy is same. Work is what? Like F into S, force into displacement, fine. And energy is the capacity to perform that work. Energy is a capacity to perform that work, fine. That is the meaning of energy. Fine. Energy is like a capacity to perform work. थोड़ा आपको मैं फिजिक्स के टर्म्स में बता रहा था आपको मैं, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, like I have to take summation. Summation मतलब I have to take summation from माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. अब ये सम का मतलब क्या है ये हम लोग समझते धीरे धीरे कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. आई कम टू दिस पार्ट लेटर. यहाँ पे वो बोलता है एक्स ऑफ एन का स्क्वायर. मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक सिग्नल है जो कुछ इस प्रकार से है, लाइक यहाँ पे आई हैव लाइक 1, यहाँ पे लाइक आई हैव लाइक 3, यहाँ पे लाइक आई हैव लाइक 4 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आई हैव लाइक 1, यहाँ पे लाइक आई हैव लाइक 2 एंड सो ऑन. तो ये सिग्नल अगर आप देखते हो तो दिस सिग्नल इज गोइंग फ्रॉम -2 to +2. समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो दिस सिग्नल इज गोइंग फ्रॉम -2 to +2 बिकॉज स्पेशल केस है. कुछ सिग्नल हो सकता है कि वो -3 से लेके +7 तक चला जाए. इसीलिए टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन वो क्या बोलता है कि यू गो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ नहीं होता है सर. एंड सिमिलरली यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी चले जाइए. यू गो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी मतलब फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट टू राइट मोस्ट. दैट इज द रीजन यहाँ पे इसने क्या लिखा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. अंडरस्टैंडिंग सर? और फिर वो क्या बोलता है कि यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट. मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. ये प्लस कहां से आया सर? यहाँ पे तो प्लस दिख नहीं रहा है. समेशन दिया है ना सर. समेशन मतलब प्लस, लाइक यू हैव टू ऐड. फाइन. आपको और एक चीज दिखाता हूं मैं. अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करता हूं तो वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं. अगर हम लोग डिस्क्रीट की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग समेशन के एग्जांपल लेते हैं. दिस इज फॉर कंटिन्यूअस, दिस इज फॉर डिस्क्रीट. तो कंटिन्यूअस के लिए हमेशा इंटीग्रेशन होता है. अगर मैंने आपको ये सिखाया होता एनर्जी ऑफ अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, so this summation would have been replaced by integration. But since I'm talking about energy of a discrete time signal, that is the reason I'm taking a summation sign. Fine. Just again a mathematical perspective. मैथमेटिक्स में ये आप सीखा होगा या आपको पता होगा. Fine. Is it clear to you? फिर वो बोलता है कि ये करने के बाद में like what you did sir here in this case, what you did 2 square plus 1 square plus 3 square plus 4 square. अब ये करने के बाद में जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर आपका फाइनाइट आता है, फाइनाइट अगर आता है तो सिग्नल को हम लोग क्या कहेंगे? सिग्नल इज नोन एज एनर्जी सिग्नल बिकॉज इट इज फाइनाइट. अगर आपका आंसर इन्फिनिटिव आता है इसको क्या कहोगे? इट इज नॉट एन एनर्जी सिग्नल. इज इट क्लियर टू यू सर? एनर्जी सिग्नल कब होगा? जब ये करने के बाद में, ये ऑपरेशन करने के बाद में, ये मगजमारी करने के बाद में अगर आपका आंसर फाइनाइट आता है, लाइक 5 या 9 या 22 या 35 या 1034, whatever answer it is, but it is finite number, at that time you say this is an energy signal. And if it is infinitive, you say it is a non-energy signal. It is not an energy signal. I hope the things are very much clear to you, sir. अभी हम लोग एवरेज पावर का, अभी हम लोग पावर की बात करते हैं सर. The one part of the coin is over because यहाँ पे दो चीज था, एक एनर्जी था और एक पावर था. तो एनर्जी इज डन, नाउ कमिंग टुवर्ड्स पावर. तो भाई पावर क्या होता है? What is the meaning of power now? So again let's come to power sir. तो पावर क्या बोलते हैं? Again same chapters आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे. So again you're talking about 11th physics 1 chapter 1 measurements, 11th physics 1 chapter 4 force, और एक फिर चैप्टर था 12th के अंदर 11th में एक चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी करके. Fine, that was I think chapter number 11 if I'm not wrong. The 12th physics 1 chapter number 11 करंट इलेक्ट्रिसिटी. वहां पे भी अपने पावर के बारे में अपने पढ़ाई किया था. पावर क्या बोलता है? पावर इज व्हाट? पावर इज डिफाइंड एज वर्क अपॉन टाइम. फाइन. वर्क अपॉन टाइम, कि एक वर्क करने के लिए आपने कितना टाइम लिया, वो पावर डिफाइन करता है. फॉर एग्जांपल एक आदमी है, इसने वो काम करने के लिए उसने 5 मिनट लिया. दूसरा आदमी है, उसने वो सेम काम करने के लिए उसे 3 मिनट लिया. तब क्या कहोगे? किसका पावर ज्यादा है? सेकंड पर्सन इज हैविंग मोर पावर. व्हाई? बिकॉज सेकंड पर्सन हैज डन दैट वर्क इन 3 मिनट्स compared to first person doing work in 5 minutes. That is the meaning of power. So that is what I'm talking about. The power is given by work upon time. अच्छा, अभी यहाँ पे सर सुनिए क्या होने वाला है. यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक सिग्नल है जो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया था. जस्ट आई विल शोकेस इट टू यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये सिग्नल अगर आप देखते हो तो ये सिग्नल जो है वो लेफ्ट साइड में भी है, वो सिग्नल जो है वो राइट साइड में भी है. ठीक है. और वो सिग्नल जो है वो 0 पर भी है. तो फॉर एग्जाम्पल कोई सिग्नल है जिसका विड्थ n है. n कहां पे? इन द लेफ्ट. एक सिग्नल है जिसका विड्थ राइट में है, फॉर एग्जाम्पल n. ओके, सो नाउ आई कैन से इट इज 2n बिकॉज यहां पर भी है, यहां पर भी है. सही बात है सर. और वो सेम सिग्नल यहां पर भी है एट 0. तो आई कैन से 2n + 1.
समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? Why it is 2n+1? कि from where the hell I got this denominator as 2n+1? 2n+1 का मतलब ये है कि n लेफ्ट साइड में भी है, n राइट साइड में भी है, और एक पार्ट उसका 0 पर भी आता है। इसका क्या लिखा मैंने? 2n+1। इज इट क्लियर टू यू सर? क्या क्या मीनिंग कहने की कोशिश कर रहा हूं? एंड रेस्ट पार्ट इज सेम एज इट इज एज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, बिकॉज फॉर्मूला वही था। व्हाट इज द फॉर्मूला सर? मैंने पहले आपको कहा था, पावर इज गिवन बाय वर्क अपॉन टाइम सर। फाइन, तो वर्क एनर्जी फॉर्मूला हैज टू बी देयर एंड डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिया? मैंने टाइम आई टेकन इन टर्म लाइक दिस फॉर्म, लाइक n एंड ये वाला 1, तो 2n+1। फाइन, इट इज मैचिंग सर। थोड़ा आपको मैंने फिजिक्स का बैकग्राउंड दे दिया ताकि आपको समझे कि फॉर्मूला कहां से आया, बिकॉज ये फॉर्मूला का प्रूफ नहीं दिया हुआ है एंड प्रूफ इज नॉट दैट एक्सपेक्टेड, बट यू शुड नो एज अ टीचर, आई शुड टेल यू लाइक व्हाट इज द बैकग्राउंड फ्रॉम वेयर यू गेट दिस फॉर्मूला। Fine. So that what we have discussed about it. So this is what we have seen. Now let's proceed forward in the this. अब वो सेम चीज यहाँ पे रिपीट होने वाला है सर, कि अगर पावर जो है, if the power of a DT signal is finite, then it is a power signal, and if it is infinitive, we call it as not a power signal. तो कोई सिग्नल ऐसा भी होगा जहां पे like 4 cases 0 0 0 1 1 0 1 1, energy not an energy, not power, energy but not power, not energy but power, energy and power. There can be cases. Fine, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि चेक whether the given गेट में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे टाइप का, कि आपको x of n दिया जाएगा, फिर आपको कहा जाएगा कि चेक whether the which of the following options is correct. This signal x of n is an energy signal but not a power signal, power signal but not an energy signal, neither energy nor power, both energy and power. Then you have to correct. हाँ भाई ठीक है, it is this. फाइन, तो आपको दोनों स्टेप करना पड़ेगा, एनर्जी करना पड़ेगा, फिर आप चेक करोगे फाइनाइट है कि इन्फिनिटिव है, देन अगर पावर करोगे अगेन यू विल चेक, देन यू विल से कि हाँ दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन हम देखेंगे ऐसे टाइप का। अभी क्वेश्चन पढ़िए सर, यहाँ पे क्या लिखता है, जस्टिफाई करिए कि यूनिट स्टेप सिग्नल जो होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल, इज इट अ पावर सिग्नल और नॉट। फाइन, फिर क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, जस्टिफाई करिए कि यूनिट रैंप जो होता है, रैंप अगेन हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड सिग्नल्स, एलिमेंट्री सिग्नल्स, बेसिक सिग्नल्स, यूनिट रैंप इज नीदर एनर्जी नॉर पावर। मैंने कहा था ना 4 होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1 लाइक दैट वे। I will also prove if energy is finite then power is 0 and take a numerical example based on that. तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग यूनिट स्टेप की बात करता है। पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। कंसीडर अ फॉलोइंग डीटी सिग्नल 1 2 1 1 3 1, ऐसे कुछ सिग्नल बना के दिया, इसको इसका एनर्जी निकाल के दिखाई। तो एनर्जी क्या करना है सर, यहाँ पे पहले ही कहा था आपको मैंने, दैट यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड ऐड देम, लाइक 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड दैट गिव्स यू आंसर एज 17। फॉर दिस फाइनाइट 17 फाइनाइट नंबर होता है, बिकॉज़ 17 आप बता सकते हो कि 17 मतलब क्या, that is known as a finite energy signal. What is the meaning of infinite, which you can't define? Can you count number of drops in the sea? Can you count number of stars in the sky? No, the answer is you can't count. तो जो चीज को आप काउंट नहीं कर सकते उसको आप क्या कहते हो, इन्फिनिटिव। बट 17 you can count, कि हाँ 1 2 3 4 5 you can count, that is known as finite. Justify unit impulse is an energy signal. तो अगेन 0 पे ही 1 आने वाला, इम्पल्स मतलब पिचकी, स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हो आप, ठीक है। तो E is equal to 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 is again a finite because you can say 1 is a finite, अब 1 दिखा सकते हो आप, है ना, you can represent 1. It is a finite energy. Since energy is finite, unit impulse is a energy signal. Now let's take this example, unit step is a power signal or not. तो क्या करना है यहाँ पे, कंसिडर यूनिट स्टेप सिग्नल। पहले मैंने एनर्जी निकाला यहाँ पे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर पे इन्फिनिटी आ गया, तो दिस इज नॉट एन एनर्जी सिग्नल बट इनफाइनाइट यहाँ पे आने वाला है। अब देखिए सर यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपको 17 आया था, अब दिखा सकते हो 17 ऑन पेपर, 1 you can show, you can count 1, fine, but can you count infinity like 1 square plus 1 square, it is so on, because it is going on, 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1, 5 पे 1, 6 पे 1 and so on, 100 पे 1, 1000 पे 1, it is continuous, it is going on. So you can't count. अगर सुबह से लेके आप 4 साल तक भी अगर बैठ गए काउंट करने के लिए, you can't stop कि हाँ भाई I got the answer. It is infinite energy. This is an not energy signal. Let's computation of power. थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए सर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे समेशन भी आता है तो जो हमने पढ़ाई किया है, और यहाँ पे लिमिट भी आना होता है। लिमिट कैसे सॉल्व किया जाता है, अगेन यू गाइस माइट हैव स्टडीड इन योर 11th मैथमेटिक्स 2 में आपने पढ़ा होगा अबाउट लिमिट एंड कंटिन्यूटी, बट स्टिल आई विल गिव सम आइडिया टू यू लाइक व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो क्या बोलता है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2n+1, ठीक है। समेशन में यहाँ पे लिखा है x ऑफ n का स्क्वायर। अब सुनिए सर, ये इंटरेस्टिंग है समझने के लिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं सर वो x ऑफ n, व्हाट इज x ऑफ n, तो हियर आई कैन से x ऑफ n इज 1, तो 1 का स्क्वायर मुझे लेना, मतलब आई हैव टू टेक 1 एंड हैव टू ऐड 1 अगेन एंड अगेन लाइक दैट वे, फाइन। यहाँ पे समेशन में क्या लिखा है, -n to +n,
फाइन। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो, इज देयर एनीथिंग ओवर हियर इन द लेफ्ट हाफ? नो, जीरो। इज देयर एनीथिंग ऑन द राइट हाफ? यस, कैपिटल एन इज देयर बिकॉज इट इज गोइंग ऑन। और यहाँ पे जीरो पर भी आता है, इसलिए पे मैंने क्या लिखा है, n+1। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। फाइन। अगर दोनों साइड होता है मैं क्या लिखा वहां पे, तो होता है मैंने पे 2n+1, बट यहाँ पे सिर्फ एक साइड में अवेलेबल इसलिए मैंने n लिखा, जीरो पर भी सैंपल इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ पे +1। फाइन। अभी लिमिट लेने के लिए आपको इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू टेक n कंप्लीटली आउटसाइड। तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1+1/n, फिर 2 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, 1+1/n। substitute the value of infinitive and you know 1 upon infinitive is what, 0. You get answer as 1/2 is equal to finite. So we say since it is a power is finite, unit step is a power signal, not energy but power. ये प्रूव हो गया। जस्टिफाई यूनिट रैंप इज नीदर एनर्जी नॉर पावर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सर, 0 है, 1 2 3 4, तो आपने क्या लिखा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो अगेन ये इन्फिनिटी भी चला जाने वाला है, तो इट इज एन इनफाइनाइट एनर्जी, इट इज एनर्जी इज इनफाइनाइट, हेंस इट इज नॉट एन एनर्जी सिग्नल। अब यहाँ पर आते हैं सर, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे पावर सिग्नल आने वाला है, यहाँ पे एक्स ऑफ एन है। व्हाट इज एक्स ऑफ एन? एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एन। रैंप में वैसे ही बोलते हैं ना हम लोग, एक्स ऑफ एन इक्वल टू एन, एन का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे क्या लिखोगे आप, x of n square equal to n square होने वाला है। So we know x of n equal since order of numerator, यहाँ पे न्यूमरेटर का ऑर्डर क्या दिया है, यहाँ पे न्यूमरेटर ऑर्डर इज व्हाट, 2। व्हाट इज द डिनोमिनेटर का ऑर्डर, n। तो जब न्यूमरेटर का ऑर्डर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर का ऑर्डर, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर इज लाइक द हाईएस्ट डिग्री। व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री हियर, स्क्वायर 2। व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री, 2n raised to 1। तो व्हाट रेज टू 1 मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑर्डर इज 1, यहाँ पे डिग्री इज 1, यहाँ पे 2 इज मोर देन 1, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री इज मोर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। तो दिस विल गिव यू इन्फिनिटिव, बिकॉज अगर आपने n बाहर निकाल भी दिया तो आपका n न्यूमरेटर में तो बचेगा, बिकॉज एक ही n कैंसिल होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा था ऊपर वाले केस में, ऊपर वाले केस में क्या हुआ था कि n was 1 न्यूमरेटर, n raised to 1 इन डिनोमिनेटर, दोनों भी n ही था, ऑर्डर वाज सेम। तो आपने n कैंसिल किया, n कैंसिल कर दिया, तो n was gone, तो आपके केस में क्या बचा, 1/2 फाइनाइट। फाइन। बट यहाँ पे क्या होने वाला है कि n अगेन रहेगा न्यूमरेटर में, एंड वो n पे अगर अपनी इन्फिनिटी डाल दिया तो खत्म, इट विल बी इन्फिनिटिव। So we say it will give you infinite power. That is the reason it is neither an energy and nor a power signal. Example दिखाता हूँ सर आपको, मैं यहाँ पे देखते, यहाँ पे ऑर्डर दोनों का सेम देख के रखा है, n raised to 1, n raised to 1, numerator is equal to denominator, we set is finite. If numerator का डिग्री is greater, जैसे यहाँ केस में डिग्री is 2, यहाँ पे डिग्री is 1, तो it is infinite। लेकिन अगर ऐसा केस आता है जहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री is like this way, इट इज 1, यहाँ पे इट इज 2, यहाँ पे 2 हो गया ना, n अंदर चला गया तो n स्क्वायर हो जाएगा, ये n into n will be n स्क्वायर। यहाँ पे न्यूमरेटर विल बी लेस, तो ऐसे केस पे आपको 0 मिलेगा। वाई 0? बिकॉज 1 अपॉन इन्फिनिटी आने वाला है, 1 अपॉन इन्फिनिटी विल गिव यू 0। ये क्यों पढ़ाया गया आपको, इसका रीजन ये था, बिकॉज यू माइट बी अवेयर ऑफ कि हम लोग ऐसा भी चीजें करना है जहाँ पे यू गेट इट इज लाइक पावर इज 0, तो पावर 0 करने के लिए आपको पता होना चाहिए। फिर फॉर्मूला देख के रखा है यहाँ पे सर, a raised to n summation is 0 to infinitive, the formula is given by 1 upon 1 minus a, and if it is from starting from 1, then the formula is given by a upon 1 minus a. Again ये भी आपने पढ़ा होगा in the मैथ्स में चैप्टर का नाम था सीरीज एंड सीक्वेंसेस, एपी जीपी, अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज। फाइन, ये वहां पे आपने पढ़ा होगा, लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या, जिसका मैं बात करता हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर 0 से स्टार्ट होगा तो फॉर्मूला है 1 upon 1 minus a, अगर इट इज फ्रॉम 1 तो वी से a upon 1 minus a। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम इसके ऊपर लेते हैं हम लोग, बेस्ड अपॉन दैट। तो यू हैव योर व्हाट इज 0.5 raised to n u of n plus 8 raised to n u of minus n minus 1। तो u of n का मतलब क्या है, इफ आई मल्टीप्लाई एनी सिग्नल बाय u of n, तो दैट विल गिव मी व्हाट, अ सिग्नल ओनली इन वन साइडेड सिग्नल, राइट साइड में आएगा। और u of minus n minus 1 का मतलब क्या है कि ये सिग्नल को सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यहाँ पे -1, आई एम गोइंग फ्रॉम दिस वे, उर्दू मेथड। -1 मतलब क्या होगा, सिग्नल स्टार्ट फ्रॉम 1 है ना, तो 0 पे 0 रहेगा, 1 पे 1, 2 पे 1 एंड सो ऑन। और फिर इसको आपको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने पे क्या होगा, दिस सिग्नल विल लुक लाइक दिस, दिस सिग्नल विल लुक लाइक दिस, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम -1 and going to minus infinity, and 0 पे you get 0. So this is the signal 8 raised to n which is only existing in the left portion. और ये सिग्नल जो है ये कहां पर है, आपका सिर्फ राइट पोर्शन में, तो ये वो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो। फाइन, तो लिमिट्स मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो इसका लिमिट में क्या रखूंगा मैं, 0 टू इन्फिनिटिव, और ये वाले का मैं क्या रखूंगा लिमिट में, -1 टू माइनस इन्फिनिटिव, सो दैट बोथ द फॉर्मूला विल बी हेल्पफुल फॉर मी। ओके,
चलो हम फटाफट देख लेते हैं हम लोग, देन वी कैन स्टॉप। 0.5 रेज टू n, फाइन, तो 0.5 रेज टू n था, उसका स्क्वायर करना है, तो 0.25 का स्क्वायर विल बी 0.25। लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी, पहले कहा था आपको 0 टू इन्फिनिटी अगर तो 1/1 माइनस ए होता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, एनर्जी मिल गया आपको। अगर 8 रेज टू n है तो क्या होगा सर, 1 टू इन्फिनिटी मुझे लेना है ना, -1 टू -इन्फिनिटी, -1 टू -इन्फिनिटी, व्हाई, बिकॉज वी हैव सीन दैट। नाउ माइनस है तो आई पुट हियर n इक्वल टू -m, so when n is -1 m will be equal to 1, when n is -8 m will be equal to 8, and then I can say like 8 raised to n, तो 8 raised to -m हमने ऐसा लिया था ना यहाँ पे, तो 8 will become what, 1/8, what is 1/64, 1 to infinity, फॉर्मूला हमारे पास में है, and this what you get as the answer. Is it clear to you? दोनों एनर्जी को ऐड कर दे, ये मुझे आंसर आया। एनर्जी सिग्नल पावर सिग्नल का हमने यहाँ पे देखा है, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस, फाइन, फाइनाइट नॉन जीरो विल गिव यू पावर सिग्नल, if it is finite we call it as energy signal, non periodic अब देख सकते हो यहाँ पे, just for your understanding, and last what we have is deterministic and random। तो डिटरमिनिस्टिक सिग्नल वो होता है जिसको आप डिटरमाइन कर सकते हो बाय मींस ऑफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, like a sin 2 pi ft, and you can determine कि हाँ ऐसे कुछ बनने वाला है, लेकिन the signal which can be determined by means of mathematical expression we call it as a deterministic signal। ये सिग्नल आप देखते हो, कैन यू राइट एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दैट कि हाँ इट इज लाइक sin 2 pi ft प्लस cos प्लस दिस प्लस 2 टाइम्स, नो, बिकॉज इट इज रैंडम सिग्नल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फाइन, जैसे कोरोना के केसेस अगर आप देखते हो, इट इज रैंडम सिग्नल, बिकॉज कभी कभी 500 आता है, कभी 543 होता है, कभी 343, इट इज लाइक रैंडम सिग्नल, it's like a deterministic, like a random signal, so this completes with our classification of signals, that is our this portion, just have a look at it sir। तो हमारा ये पार्ट जो था क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, दैट पार्ट इज ओवर, एंड दिस कंप्लीट्स अवर 1.1, और 1.2 में हम लोगों ने ऑपरेशन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कंप्लीट किया है, मॉडिफिकेशन इज नथिंग बट ऑपरेशंस, एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लीनियर कन्वोल्यूशन एंड सो ऑन। फाइन, सो 1.1 is over। Any query, any doubt, all the notes are provided to you, everything is there with you in advance, so there is no worry as such कि भाई चीजें फास्ट चली गई है। फास्ट अगर गई तो आई डू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम लिटिल बिट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बिकॉज यहाँ पे सिलेबस इज वास्ट एंड टाइम गिवन इज लेस, बिकॉज मुझे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आई हैव टू हैंड ओवर द सिलेबस टू कीर्ति चौधरी मैडम, so that she can start with the model 3, 4 and 3, 4, 5 onwards, because we are in that pace, but still anyways, और आपके लिए बेटर पॉइंट ये है कि ऑल लेक्चर्स विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, so if you feel like you have missed something because of high speed or because of connectivity issue or because of like your attention issues, तो डेफिनेटली आप वीडियो आप देख सकते हो, वीडियो पे पूरा आपको फुल क्लैरिटी मिलेगा, और वीडियो के अंदर कैसे यू कैन गो बैक, यू कैन गो फॉरवर्ड, यू कैन इंक्रीज द प्लेबैक स्पीड, एंड थिंग्स विल बी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल टू यू। That's all from my side. Don't forget to like the video, share and subscribe and comment on that, and that's all from my side. Students having doubt can stay back, others can exit. Thank you, sir.